Good morning, students. Very good morning to you all. This is Arvind Rai from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. And as you all know, I am your subject teacher of Social Studies. And in today's video, we are going to cover up the same chapter that we had started yesterday, that is prejudice and discrimination. Yesterday I had discussed with you that what is the meaning of prejudice, what is the meaning of discrimination, okay, पक्षपात और भेदभाव, ठीक है। उसी चैप्टर में हम आज बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेके, ओके। सम अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक I hope that you all are good at your homes, enjoying the vacations and also preparing for your exams. Now, what are the topics that we are going to cover in this video? First is children who are special. Children who are special. Okay. Second point is discrimination and inequality. Discrimination and inequality. Okay. Third point is equality in the constitution. Equality in the constitution. Okay. So first point is children who are special. ठीक है, जो बच्चे विशेष महत्व रखते हैं या विशेष कैटेगरी से आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, ओके, जिनके साथ भेदभाव होता है या जिनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता, वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, इसमें किसके साथ ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार जो है वो किस तरह से प्रदान किया गया है, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ओके। बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक्स ऑफ टुडेज we have discussed yesterday, that is what is prejudice, what are the kinds of prejudice, okay. In kinds of prejudice we had discussed it is based on gender prejudice, secondly it is based on religious prejudice, thirdly it is based on caste, region and race, okay, and last but not the least stereotypes. Okay, so these were the categories of prejudices, and today we are going to start our first point, that is children who are special. Okay, now see on page number 226, some children are special because they are differently abled. They might move around in a wheelchair or with the help of crutches, or they might need hearing aid to hear properly. Some children are not able to see, while some others cannot read or write fluently like others, okay, or like their friends. So these are called special children or differently abled, okay, जिनका कुछ विशेष महत्व होता है हमारे समाज में। कोई बच्चे सुन नहीं सकते तो उनके लिए एक हियरिंग एड आती है, एक मशीन आती है, उपकरण आती है जिनकी मदद से वो सुन सकते हैं। किन्हीं बच्चों में कोई और फिजिकल या मेंटली डिसेबिलिटी होती है,
तो ये सभी बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मतलब एक किसी विशेष प्रतिभा में ये माहिर होते हैं, निपुण होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रंस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल चिल्ड्रन। Second paragraph is special children need our special care and attention. They need love, respect and acceptance by others. स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हमारी बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट जो होती है वो उसकी आवश्यकता होती है। दे नीड लव, स्पेशल अटैचमेंट, ओके। आफ्टर दैट we should neither take pity on them nor make fun of them. It is important that differently abled children do not face discrimination. Okay. Now see the second paragraph is special children need our special care and attention. They need love, respect and acceptance by others. We should neither take pity on them nor make fun of them. It is important that differently abled children do not face discrimination. ओके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, वो हमारी स्पेशल केयर, हमारे स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करते हैं। उन्हें हमारी बहुत ही स्पेशल इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। ओके उनका हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट लव ऑन देम, वी शुड नॉट मेक पिटी फेसेस बाय सीइंग देम, we should neither take pity on them nor make fun of them. It is important that differently abled children do not face discrimination. जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका हमेशा एक सामान्य बच्चे की तरह सामान्य बच्चों के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। उनको वैसा माहौल देना चाहिए जिसमें वो परिपूर्ण हो सके, एनवायरनमेंट के साथ वो ग्रो कर सके। ओके Till recently, regular schools do not admit children with special needs, so they had to attend special schools meant for them. But now there are many inclusive schools where children with special needs get the opportunity to study together with other children, so that they may not feel that they belong to any separate category. पहले के समय में क्या होता था कि जो नॉर्मल स्कूल्स होते थे सामान्य बच्चों के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स होते थे, उस स्कूल्स में ऐसे बच्चों को, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसे इंक्लूसिव स्कूल्स होने लगे हैं जिनमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे क्या होता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, उनको ये फील नहीं होता कि दे कम फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी और दे बिलोंग टू एनी अदर कैटेगरी। वो सामान्य बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में जाके एजुकेशन को या बाकी एनवायरनमेंट से वो अपनी चीज़ों को, एजुकेशन को सीख सकते हैं। ओके सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स। नाउ विल स्टार्ट सेकंड पॉइंट, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। ओके We have studied that discrimination and prejudice often lead to different kinds of inequality in the society. One of the most prominent examples of inequality is the caste system, in which people from the so-called upper classes consider everyone else in the society inferior and deny them most of their rights. Discrimination and inequality. Okay? समानता क्या होती है, इक्वालिटी कहा जाता है, और असमानता दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, मतलब किसी को बराबरी का अधिकार न देना, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डिस्क्रिमिनेशन से। जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हम उसको बराबरी का अधिकार नहीं देते, वहां पे हम बराबरी के अधिकार को उसका हरण कर लेते हैं, उसको छीन लेते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है इनइक्वालिटी, असमानता की। और इसका सबसे जो बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं, वी कैन सी द बेस्ट एग्जांपल इन द कास्ट सिस्टम। इन कास्ट सिस्टम द सो कॉल्ड अपर कास्ट, दे बिलीव दैट दे आर सुपीरियर इन द सोसाइटी। जो बड़ी जाति के लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनको वो इंफीरियर समझते हैं। सो दिस इज स्टार्टिंग फेज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड
this leads to inequality in the society. After that, traditionally, Indian society has been divided into different castes on the basis of occupation. Brahmins, priests, Kshatriyas, rulers and warriors, and Vaishyas, traders were considered to be superior castes and therefore respectable, while Sudras or the lower caste were oppressed and discriminated against. हमारे पारंपरिक जो भारतीय जो परंपरा है उसमें जो ब्राह्मण्स होते थे उनको पुजारी, प्रीस्ट, ऐसी चीजों से मान्यता प्राप्त थी कि ये लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। जो क्षत्रियास होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, उनका ये माना जाता था कि वो वॉरियर्स हो सकते हैं, योद्धा हो सकते हैं। जो शूद्रास जो होते थे उनका ये माना जाता था कि वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, दे कैन डू गुड ट्रेड और ट्रेडिंग वर्क। और बाकी जो कास्ट होती थी वो इंफीरियर कास्ट मानी जाती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि हमारी सोसाइटी को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था, जिसी के आधार पे ये जो तीन जातियां थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और शूद्रास, ये लोग जो होते थे ये सुपीरियर कास्ट होते थे और इनके अलावा जो कास्ट होती थी वो उनको इंफीरियर समझते थे। तो यहां से शुरुआत होती थी डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव। आफ्टर दैट एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज अनटचेबिलिटी। According to this practice, the assumed lower caste people were considered impure and untouchable and were forced to live outside the boundaries of the society. जो ये बड़ी जातियां होती थी वो क्या करती थी कि इनके अलावा जो छोटी जातियां होती थी उनको सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता था डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, वो अनटचेबिलिटी होती थी। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत, छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता था। मतलब जो छोटी जातियां होती थी वो बड़ी जातियां इनको ये मानती थी कि इनको हमारे आसपास नहीं रहना चाहिए, इनको हम छू नहीं सकते, इनके साथ हम रह नहीं सकते। सो इसीलिए इनको उस सोसाइटी के बाहर रखा जाता था। जो यहाँ पे बड़ी जातियां जहाँ निवास करती थी उस बाउंड्री के या उस सीमा के हम बाहर कह सकते हैं कि ऐसी छोटी जातियों को उसके बाहर रखा जाता था। जैसे एक सपोज एक गाँव है तो उस गाँव के अंदर ना रह के ये गाँव के बाहर इनको निवास कराया जाता है। They were not allowed to interact with people belonging to the higher caste and were denied opportunities of education and even religious worship. छोटी जातियों के साथ भेदभाव होता था। जो रिलीजियस वर्क्स होते थे बड़ी जातियों के उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता था। शिक्षा के पैमाने पे भी इनके साथ भेदभाव होता था। जहाँ पे बड़ी जातियों को शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे छोटी जातियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। और रिलीजियस वर्शिप, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जो धार्मिक पूजा पाठ होती थी, वहां पे भी इनके साथ भेदभाव होता था। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी एंड B.R. Ambedkar, the caste system as well as the practice of untouchability have been almost eradicated from the society. Today, all men and women are treated as equals and the practice of untouchability has been banned by the Indian Constitution. हमारे समाज में कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कुछ ऐसे लीडर्स आए जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर। ये कुछ ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया, मतलब समाज को परिवर्तित करने का काम किया। जो समाज में जो हमारी सोच थी कास्ट के आधार पर समाज को डिवाइड करने की, उस सोच में बदलाव लाए। और आज के समय में ये जो समस्या है हम कह सकते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर रीजन्स में हमारे कंट्री में इस समस्या को हटा दिया गया है। दिस प्रॉब्लम इज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी से ये जो समस्या है आज के समय में बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो चुकी है और इनका जो श्रेय है ओके ये इन्हीं रिफॉर्मर्स को जाता है, सोशल रिफॉर्मर्स को, जो इस तरह के नेता है। Today all men and women are treated as equals and the practice of untouchability has been banned by the Indian Constitution. और आज के समय में हमारे देश में सभी मेन और वुमेन को इक्वली एक समान अधिकार दिया जाता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे सोसाइटी से पूरी तरह से बैन कर दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। Now we will see the next topic, that is equality in the Constitution. हमारे संविधान के तहत सभी को बराबरी का जो हक प्रदान किया गया है वो क्या है।
The framers of the Indian Constitution, led by the chairman of the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar, envisioned that all Indians should get equal rights and opportunities and be considered equal. जो हमारे संविधान के जो रचयिता थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका एक विजन था कि भारत में सभी लोगों को बराबर का अधिकार देना होगा, तभी हमारा देश जो है समृद्ध हो सकता है, हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, जब सभी लोगों को एक बराबरी का अधिकार दिया जाए। Now, Constitution gives equal rights to men and women and does not allow any discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Only for some sections of the society which have been traditionally denied rights to education, the Constitution has made some special provisions called reservations so that they can work at par with the rest of the people in the society. इनके आधार पर यह कहा गया कि हमारे देश के संविधान में discrimination is not allowed on the basis of race, gender, caste, region, anything. किसी भी आधार पर हमारे देश में भेदभाव नहीं होगा। ओके, कुछ ऐसी जातियां थी, कुछ ऐसे वर्ग थे लोगों के जिनके लिए कुछ बचे हुए थे भेदभाव, उनके लिए क्या किया गया, एक रिजर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। रिजर्वेशन का मतलब उनको आरक्षण प्रदान किया गया, मतलब उनको सुविधाएं प्रदान की गई, एक्स्ट्रा सुविधा, कि वो जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है हमारी सोसाइटी में, वो एक मेन फ्रेम में बाकी लोगों के साथ सोसाइटी में जुड़ सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। आफ्टर दैट, moreover, to ensure equality and justice, the Constitution has granted every citizen of India certain basic rights, irrespective of their differences in terms of caste, creed, sex, race, and religion. These are called the fundamental rights. The preamble of the Constitution of India truly reflects Dr. B. R. Ambedkar's vision of a secular India free from caste and communal biases. और इसी आधार पर इस ड्राफ्टिंग कमेटी की जो विजन थी, इनकी सोच के आधार पर इस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं रहेगा और सबको हर आधार पे, चाहे वो किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी जेंडर के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं हो। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनी ऑफ आवर पीपल, एनी ऑफ आवर सिटीजन ऑन बेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, so this was your topic regarding prejudice and discrimination in civics, and after this I am going to provide the exercise part of this chapter for your revisional work. And from next time, in our next videos, we are going to cover the remaining part of our syllabus, okay, in history part, from where we had left, okay, from where we had left in the physical classes, and we are going to complete the syllabus in our next videos. Till then, please revise the topics, please go through the topics what we had been gone through, and also revise the exercises what we had completed in our physical classes, and please be prepared for your exams and take care of yourselves. Be safe and be healthy. Thank you so much.